Good morning, everyone, सबको गुड मॉर्निंग। and greetings to all of you in matchless name of our Lord Jesus. आप सबका अभिनंदन करते हैं हम प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम में। Yeah, I'm very happy to once again connect with all of you. It's been quite some time, but I'm very glad uh, to be able to, you know, uh, meet you all today. और मैं बहुत खुश हूँ एक और बार आप सबसे जुड़ने के लिए। बहुत समय हुए हम इस मीटिंग से जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ और खुश हूँ आप सबके साथ जुड़ने के लिए। If you can, I would request you to switch on your cameras because it always feels better to see your faces, when somebody is preaching. अगर हो सके, अगर आपका इंटरनेट सर्विस सही है तो प्लीज अपने कैमरास को ऑन कीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है हम आपके चेहरों के देखकर हम आपके प्रचार कर पाए। Thank you. धन्यवाद। So you all have been aware that I was away for a month to US and UK, and the Lord has been uh, very gracious. It's been such a blessed time of ministry, I must say. और आप सब जानते होंगे कि पास्टर शेरिडन एक महीने के लिए इंडिया में नहीं थे। वो यूके गए थे, इंग्लैंड गए थे और उसके साथ वो यूएस भी गए थे। और प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से था और वो एक आशीष समय सेवकाई का था। Um, I was able to share a lot of things about the ministries that we are doing here in India, in some of our mission fields. There were personal stories. And the Lord gave me an amazing opportunity to meet so many different people who are really touched by what God is doing in India. और बहुत कुछ परमेश्वर ने बहुतायत में किया। जब पास्टर शेरिडन वहां गए, बहुत लोगों के साथ जुड़े, लोगों के साथ मिले और उन्होंने भारत देश में जो सेवकाएं हो रही उनके बारे में, हमारे जो हार्वेस्टर्स के साथ हो रही, वहां पे जाके उन्होंने बताया। बहुत लोगों को अपनी व्यक्तिगत गवाहियां, व्यक्तिगत जो कहानियां हैं वो लोगों को बताई और बहुत लोगों को ये सारी घटनाएं छू गई। But there's one thing that I wanted to, leave with them. The message is um, Indian Christianity, the Christianity that we practice, the life that we live as Christians is much more superior than the Western Christianity, the Christianity in US or UK, and I emphasized it. I said it through what God is doing in our lives and how we have committed our lives to serve God. And it was quite a challenge for people, and they accepted. और पास्टर शेरिडन ने उनको यही बताना चाहा कि भारत देश में जो क्रिश्चियनिटी है, जो लोग प्रभु यीशु के पर विश्वास करते, उसका स्तर पश्चिमी क्रिश्चियनिटी से बढ़कर हुआ है। और उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उस लोगों ने स्वीकार किया और समझा कि भारत देश में प्रभु कैसे बहुतायत से कार्य कर रहा है। And I'm very confident that, God has a great reward for each and every one of us, even as we sacrificially and faithfully serve Him, in whatever places, whatever opportunities that God has given us. और मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक रिवॉर्ड है। जहां भी हम सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है और परमेश्वर हमें जरूर इस आशीष से भरेंगी। And everywhere, every time I had an opportunity, I always mentioned that, what God is doing in India is not just through one man. I said, there is a great team, great team of faithful pastors, servants of God who are serving the Lord in the front line of the battlefield. और जहां भी वो गए, उन्होंने कहा कि जो भारत देश में जो सेवकाएं हो रही है वो एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रही। एक बहुत बड़ी एक टीम है जो साथ में मिलकर प्रभु के कार्य को कर रही है। And and I told them that you know I represent them. It's I represent their sacrifice. I represent their commitment. I represent their service to God. And they are the ones. They don't have the privilege, probably like me, to come here. But I said it's God is building His kingdom through an amazing team of faithful men and women who are part of harvesters. And whatever success, if we should call it, or whatever progress or expansion that God is bringing in our ministry
ministry, it's because of all of us. और पास्टर शेरिडन ने उनको ये बताया कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं, मैं उनकी अगुवाई कर रहा हूं और एक टीम बनकर हम सेवकाई कर रहे हैं। और मैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उनके त्याग को देखते हुए और उनके समर्पण को देखते हुए, और जो भी हमने जो भी सफलता पाई है वो हम सब ने मिलकर प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त की है। So as Paul says, we all share in the gospel of the Lord Jesus Christ. All of us collectively, there's nobody who's inferior or superior. Of course, God has placed us in so many different places with different giftings, but I'm very conscious and I acknowledge that, with the fear of God and with all humility, that whatever God is doing in our organization, in our mission fields, in our lives, it's because of all of us together as a team, that we share the success. और जैसे पौलुस लिखता है कि हम सब एक हिस्सा है सुसमाचार बांटने में, और वैसे ही मैंने भी वहां पे लोगों को बताया है कि जो भी सफलता आज हम सेवकाई में पा रहे हैं वो हम सब के समर्पण और त्याग के कारण है, और हम सब मिलकर इस सेवकाई को कर रहे हैं। कोई भी ऊंचे स्तर पर नहीं है, कोई निचले स्तर पर नहीं है, हम सब साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। So continue to be faithful in what little God has given you. Just be faithful where God has put you. Give your best, and I'm sure the Lord will lift you up. और जहां भी आप सेवकाई कर रहे हो उसमें विश्वास योग्यता के साथ आप इस सेवकाई को आगे बढ़ते रहो। अपने पूरे तन मन धन से सब कुछ लेकर आप इस सेवकाई करो, और परमेश्वर जरूर आपको उस इनाम को देंगे, उस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। All right, for today's message, I want you to turn your Bibles to 2 Kings chapter 5, and we will read from verse 19 to 27 in Hindi. This is a story that most of you should know, but once we can just read through the passage. और आज के संदेश के लिए हम दूसरे राजाओं का पत्र खोलेंगे, 5वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 5, दूसरे राजाओं का 5वां अध्याय 19 से लेकर 27 को हम पढ़ेंगे। आप सब इस घटना को जानते हैं क्या हुआ है बाइबल में, और मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा। दूसरे राजाओं का पत्र 5वां अध्याय 19 से लेकर 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 19। आई विल रीड इन हिंदी। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि अप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ली। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। तब वह टील के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उससे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़
तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। All right. So today's message is on Gehazi. और आज का संदेश जो है वो गेहाजी के ऊपर। So Gehazi is the servant of the Lord. He is God's servant. He is God's man, right? You understand from the story. और गेहाजी जो है यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर का सेवक है, वो परमेश्वर का एक मनुष्य है। So it's not by accident, he became Elisha's servant. It's a very special calling, and it's a very special choice. It was not an ordinary choice. और हम देखते हैं ये अनजाने में या गलती से एलिशा का सेवक नहीं बना, ये एक बहुत प्रमुख चीज है जो उसने वहां उस सेवकाई को चुना। And any servant of a prophet is apparently a successor, right, of that prophet. Like Joshua was Moses' servant. Apparently, he was a successor. Elisha was Elijah's servant. So apparently, he was his successor. So Gehazi is supposed to be a successor of Elisha, So Elisha choosing Gehazi to be his servant, I think he should have been a very special man. और अगर आप देखते हो किसी भी भविष्यद्वक्ता का कोई सेवक होता है, जैसे एलाइजा का जो एलिशा था, तो वो एक उत्तराधिकारी होता है, यानी उसका जो भविष्य उसके बाद वो भविष्यद्वक्ता बनने वाला होता है। जैसे मोसेस का जोशुआ था, हम सब जानते हैं कैसे वो एक अगुवा बना, वो एक उत्तराधिकारी बना। उसी भी ये एक प्रमुख चीज थी, एक सेवक बनना, और ये परमेश्वर का सेवक था जो एलिशा के साथ जुड़ा था। Let's read 2 Kings chapter 2 verse 7. दूसरा राजाओं का दूसरा अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। 50 men of the company of the prophets. So you see, you will, I think you should know this story. There are 50 prophets. Okay. So there is a school of prophets there. They are all trained as prophets. And this is in Jericho. So in Jericho alone, you will read there are 50 men of the company of prophets were there. So in Jericho, there is 50. And before that, you will find they came to Bethel. So even in Bethel, it says the company of prophets at Bethel in verse 3. So approximately, I think there should be at least minimum 100 prophets, 100 men who were trained under Elisha. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के दूसरे अध्याय में 50 जन थे जो यरीको में, और हम पढ़ते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता थे, और वहां पे एक स्कूल हुआ करता था भविष्यद्वक्ताओं को, जहां पे उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता था। और ऊपर अगर देखते तो बेतेल में भी 50 लोग थे, यानी लगभग 100 भविष्यद्वक्ता वहां पे थे। So I guess out of 100, roughly I'm saying, or it could be more than that also, because roughly what biblically, if I get an estimate, out of 100 men, I guess Gehazi was chosen to be the successor of Elisha. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 100 लगभग भविष्यद्वक्ता वहां पे थे, और उन 100 भविष्यद्वक्ताओं में से एक व्यक्ति जो गेहाजी है, उसे चुना गया था एलिशा का उत्तराधिकारी बनने के लिए। So in the line of great prophets, Elijah, Elisha, Gehazi. So he had it in him. He had it in him. और हम देखते हैं जो महान भविष्यद्वक्ता है एलाइजा, एलिशा, और उसके बाद गेहाजी को चुना गया। I think the problem is, Gehazi did not understand his calling, his choice. So गेहाजी, सॉरी, yeah, go ahead. गेहाजी की गलती ये थी कि उसे अपनी बुलावट की समझ नहीं थी। वो जो उसे चुना गया था, उसे वो बात समझ में नहीं आई थी कि उसको कितने बड़े सेवा के लिए चुना गया था। He did not understand how special he was. Just imagine, being a successor of Elisha, to be the next in line prophet.
He did not understand his calling. He did not value his anointing. He did not understand the special privilege, that he had in the line of prophets. उसे ये बात समझ में नहीं आई कि वो एलीशा इतने बड़े भविष्यद्वक्ता का उत्तराधिकारी था और उसने उसके उसके बुलावट के मूल्य को, उसके अभिषेक के मूल्य को वो समझा नहीं। वो सोच रहा था ये अभिषेक और ये बुलावट कुछ साधारण सी So है। my first point is very simple. Don't take your calling lightly. और जो मेरा पहला पॉइंट है बहुत आसान से आपको समझाने के लिए कि अपनी बुलावट को एक साधारण सी बुलावट नहीं समझना। You are a very special choice. There is a very special calling. It's a special privilege and it is a high choice. God has chosen you and you need to value that calling. और आप एक खास चयन हो, एक खास चुने गए व्यक्ति हो और आपकी बुलावट भी खास है, आपकी सेवकाई भी खास है, लेकिन आप इस खास बुलावट, खास चयन को आप साधारण तरीके से नहीं समझना। ये बहुत ही खास तरीके से परमेश्वर ने आपको बुलाया है और चुने गए हो आप। It's not by accident that you have come into ministry, right? You didn't have any other work to do, or maybe you're not successful in your secular career, and because of that, you came to ministry. It's not by accident. It's a very special choice that God has chosen each and every one of you. ये गलती से नहीं हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसे आपको चुन लिया है कि आपके पास कुछ और काम नहीं था, कि आप सफलता नहीं पा रहे थे इसलिए आप इस सेवकाई में आए। ये गलती रूपक से नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आपको एक खास बुलावट के लिए चुना है। It doesn't matter how big or how small your ministry is. Maybe you are in one small God-forsaken village. Nobody knows you. There is no fruit in your ministry. You have not seen any success. It doesn't matter. It doesn't. But I want you to understand and value your calling, which is it's God who has called you. ऐसा मत सोचिए कि आपकी सेवकाई छोटी है या बड़ी है, या आप एक ऐसे गांव में सेवकाई कर रहे हो जहां पे कोई भी नहीं है, आपके कलीसिया में अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आया है, ऐसे मत सोचिए। लेकिन आपको ऐसे सोचना है, आपका मन में ऐसे डालना है कि परमेश्वर ने जिसके लिए आपको चुना है वो एक खास सेवकाई है, आपका अभिषेक खास है, आपका चुनाव, आपका चयन खास है। Value your work. Value the work that God has given you. Don't despise. Don't think, it's very small. There's nothing great about it. It's not something like you expected it to be. Value the work that God has entrusted to you because He believed and He trusted that you will be His faithful servant. So value the work. अपने काम की कदर करना सीखो। ये मत सोचो कि ये बहुत छोटा है, परमेश्वर ने जो दिया है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो बहुत छोटी सेवकाई, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी सेवकाई होती है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आप सोचिए ये परमेश्वर की बुलावट है और अपना जो काम आप कर रहे हो उसके कदर करना सीखो। Value the experiences that you have, God is giving you. I value all my experiences. Value the pain, the sorrow, the struggles, the suffering, the disappointment, the failure, all that sometimes we go through in the ministry. God is in it all. So I want you to value everything. Value the anointing that God has given you. Nothing can be taken lightly because it's a sacred calling and you are specially chosen by God. So we need to value what God has done. आपने परमेश्वर ने आपको जो अनुभव दिए, जो जिस अनुभवों से गुजरते हो आप, उसके मूल्य को समझे। बहुत बार आप संघर्षों से गुजरते हो, दर्द से गुजरते हो, हताश होते हो, निराश होते हो। ऐसी बहुत सारी चीजों के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। इस अभिषेक जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके मूल्य को समझो। परमेश्वर ने आपको एक खास अभिषेक दिया है, खास बुलावट दिया है। इसको एक साधारण सी चीज या एक ऐसी चीज ऐसा मत रखो कि इसका कोई कदर नहीं, इसका कदर करना सीखो, क्योंकि एक खास चयन है, आपकी खास बुलावट है। So that's my first point. Okay, so God has chosen. Gehazi was a special choice by God in the line of prophets, right? But he did not value his calling. So I want you to understand this. Value your calling.
no matter how big or small your work is, value the anointing, guard your anointing, and value the work, everything that God has entrusted you. और यही मेरा पहला पॉइंट है कि परमेश्वर ने आपका चयन किया है, बहुत खास चयन है, और परमेश्वर की बुलावट आपके ऊपर है। इसके मूल्य को समझो, इसका कदर करो। गेहाजी भी एक खास चुना गया व्यक्ति था, लेकिन उसने अपनी बुलावट का कदर नहीं किया। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बुलावट की, इस चयन का कदर करो। Number 2, दूसरी चीज, Gehazi went after the gifts of Naaman. दूसरी चीज, गेहाजी उन तोहफों के पीछे पड़ा था। वो क्या चीजें पा सकता है, नामान से क्या पा सकता है, उनके पीछे पड़ा था। I feel sorry for Gehazi और मुझे बहुत दुख लगता है गेहाजी को देखते हुए, because I see what he desired was something very small actually. और मैं देखता हूं उसके अंदर जो इच्छा थी वो छोटी चीजों के लिए थी। Okay, if you read chapter, same chapter 5, verse 22, he says, please give them a talent of silver and 2 sets of clothing. That's all he asks. और अगर हम दूसरे राजाओं का 5वां अध्याय 22वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं वो क्या मांगता है। 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र, कुछ थोड़ी सी चीजें वो मांगता है। And if you see, Naaman is saying, no, you take 2 talents, said Naaman, verse 23. And he urged Gehazi to accept them. So he's compelling him, no, not just 1, you take 2 talents. And Gehazi is hesitant, I only want 1. And he's compelling, he's urging. So this guy is not all that greedy, you see. और हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है कि 1 किकार चांदी मांगता है, लेकिन अगर 23वें वचन में देखेंगे तो नामान कहता है 1 किकार क्यों, तुम 2 किकार ले लो, और उससे वो विनती करता है कि तुम ले लो। So he doesn't want more. Maybe, that's all he needed, for his livelihood. Maybe he thinks, yeah, 1 talent is more than enough. 2 clothes are more than enough. I don't want more. Just give me what I want. And Naaman is saying, no, you keep 2 talents. And he's saying, no. So he compels him. He urges him. No, it's okay. Take it. You see? So it feels like, this guy only desired something very small. He was not greedy about something big. हम देखते हैं कि वो 1 किकार मांग रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो ज्यादा लालची नहीं था। वो थोड़ी चीजें चाहता था जो उसके जीवन के लिए जरूरी थी। उसमें लालच ज्यादा, ऐसे वो ज्यादा मांग सकता था, लेकिन वो लालच नहीं कर रहा था। लेकिन नामान उसे कह रहा है, विनती कर रहा है कि तुम 2 किकारें ले लो। लेकिन वो कहता है, इससे हमें पता चलता है कि कुछ बड़े तोहफों के पीछे पड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी लालच नहीं थी। जो उसके दिन भर दिन की जरूरत थी उसके लिए वो मांग रहा था। So, yes, there was a temptation, but I think he could have actually conquered. He could have actually conquered the desire. He could have said, no, I think I'll trust God. I don't want this. I don't want this. Maybe this is what I need for my life. Maybe it's a legitimate need. Maybe this is something, if I get, I'm settled. But no, I would trust God. Maybe he would have conquered that desire. हाँ, मैं देखता हूं कि यहाँ उसके अंदर एक लालसा थी, एक टेम्पटेशन में गिरा, एक लालच आई। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो उस लालच से निकल सकता था। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकता था कि परमेश्वर, आपने मुझसे कहा है कि आप मेरे दिन भर दिन की रोटी आप मुझे प्रदान करते हो। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी जो वो मांग रहा था, बहुत छोटी सी चीज थी। 1 किकार चांदी और 2 वस्त्र थे, शायद उसकी वो जरूरत थी, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकता था, उस लालच से निकल सकता था। This Sunday I was preaching from Joshua 7, about Achan. God is asking Joshua, why did you do this? What did you do? He said, I just saw 1 Babylonian garment, just 1 Babylonian garment, and I took it. I don't know, just a small thing. Can you see? He could have actually conquered this desire, that 1 Babylonian garment. I don't know if we don't know, whether it is for him or for his wife, or men, do they wear Babylonian garment? I don't know. Maybe for the demands of his family. We do not know. Sometimes
These are small things. I was even saying, small things. 30 pieces of silver. Judas betrayed Jesus. 30 pieces. And then he goes and throws that, the money in the temple courtyard and says, I have betrayed innocent blood. Just always small things. Those small temptations can be easily conquered. But Gehazi fell for it. और आज इस संडे पास्टर शेरिडन जोशुआ के किताब में से 7वें अध्याय में से प्रचार कर रहे थे और अकेन के जो जगह पे क्या क्या हुआ उसके बारे में, और परमेश्वर योशुआ से पूछता है कि तुमने ये चीजें क्यों की, और वो कहता है कि तभी वो कहता है कि दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने वो एक ही वस्त्र, बाबिलोन का एक ही वस्त्र मैंने ले लिया। तो परमेश्वर कहता है कि तुमने ये क्या किया। हम देखते हैं कि तो एक ही वस्त्र था, शायद वो पहनने वाला था या उसकी पत्नी पहनने वाली थी, पता नहीं, लेकिन उसने सिर्फ एक वस्त्र जो बोला गया था मत ले लो, उसने ले लिया। और हम देखते हैं कि जुडस भी जो था उसने 30 सिक्के, चांदी के 30 सिक्कों के कारण प्रभु यीशु को बेच दिया, और बाद में आकर वो डर के मारे उसने उन सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया। हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीजें वो लोग नहीं मांग रहे, 30 सिक्के, एक वस्त्र, 2 वस्त्र, कुछ चांदी के सिक्के, ये बहुत बड़ी चीजें लालच नहीं की उन्होंने, दिन ब दिन की उनकी शायद जरूरत थी। लेकिन मैं जानता हूं अगर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते तो उस लालच से निकल सकते थे। So sometimes temptations could be something very small. The compromises that we make in ministry could be very, very small. Sin could be very small. It could be something small. But if you don't deal with that, it might conquer you, right? You should conquer your desires. Otherwise, your desires will conquer you. Remember, God told Cain, sin is crouching at your door, waiting to conquer you. You have to master over it. Sometimes it could be those small things in life, small things in ministry. When we allow small compromises, it might defeat God's plan for our life. बहुत बार जब जब हमारे जीवन में कुछ गलती होती है, यानी एक लालच के कारण, तो वो लालच बड़ी नहीं होती। हम क्या सोचते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है, अगर ये कुछ करेंगे तो ये हमारी जरूरत के लिए है। लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। बहुत बार हम सेवकाई में इस तरह के समझौते करते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और वो समझौते हमें लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक इसके कोई मायने नहीं रखते। अगर मैंने ये गलती की, अगर ये लालच की है तो बहुत छोटा सा है। लेकिन हम देखते हैं कैन के जीवन में भी, कैन ने, परमेश्वर ने कहा कि ये जो तुम पाप कर रहे हो तुम्हारे द्वार के निकट है और तुम इसके ऊपर विजय पा सकते हो, तुम इस पाप को लात मार के बाहर फेंक सकते हो। लेकिन फिर भी कैन उस पाप में गिरा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम जब इस समझौते को हमारे सेवकाई में करते हैं, हम इस तरह की छोटी छोटी पापों में गिर जाते हैं। So let's say even in terms of money, right? We need finances for the ministry. We want, with so many projects that's going on. It's not for us. Sometimes even when I go abroad, I see a lot of people, even this time, they have so much of money. They are rich millionaires, so much of money they have. And your desire is that, maybe, God, you should move their hearts to support missions for our ministry work. Not for me personally, but for our work, because we want to invest in. So there is always a desire. Sometimes it could be a legitimate desire, right? But we need to guard our hearts. We need to always guard our hearts and never allow some small compromises, that would, push us away from trusting God. बहुत बार जब हम इस सेवकाई को करते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमें पैसों की जरूरत है। तो कभी कभी जैसे पास्टर शेरन कह रहे थे कि वो यूके गए तो उन्होंने बहुत लोगों से मिले, वो बहुत अमीर लोग थे। जब हम उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद वो हमें कुछ दे दे, हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं। लेकिन जो सेवकाई हम करते हैं, हार्वेस्टर्स का जो सेवकाई हम करते हैं, उसमें हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत मिनिस्ट्री करना है, आगे बढ़ना है। तो कभी कभार ऐसे मन में ऐसी सोच आती है कि हमारे लिए नहीं, और ऐसी सोच आती है। Even Pastor Nana, when he was introducing me in his church, the preaching, he said something like this, very interesting. Sometime back, he got connected with a pastor in India, because he wants to do ministry in India. He was very passionate about missions. And he said, I asked the pastor, so how much money do you require to start a church? Every month, how much is the budget to start a church in India? And you know how much the pastor said the amount is?
Pastor said, give me every month 2,500 pounds. That is 3 lakhs. Every month, he said, if you give me 3 lakhs, we will be able to start a church in India. And Pastor Nana said, that man's heart was not right. God gave him an opportunity. And he said, like, if his heart was right, probably he would be here today, in UK preaching. But because his heart was not right, God removed him. And he said, today we have Pastor Sheridan. So it's very interesting, right? Sometimes God tests our hearts, even on smaller things in life, before he rewards us. So next point is conquer your desires. It could be very small, it could be very insignificant, it could be a small compromise, but conquer all of that. बहुत बार हम सेवकाई में ऐसी छोटी छोटी समझौतियां या समझौते करते हैं और हमें लगता है कि इन छोटी चीजों से हम कुछ बड़ा पाएंगे, लेकिन ये लालच के कारण हम गिर जाते हैं। पास्टर नाना पास्टर शेरिडन को बता रहे थे कि हमसे मिलने से पहले उन्होंने एक भारत देश में एक पास्टर से वो जुड़े थे और उस पास्टर को एक दिन उन्होंने पूछा कि अगर आपको कलीसिया चलानी है भारत देश में तो आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो पूछ रहे थे कि शायद वो उनकी मदद कर सके, लेकिन तभी उस पास्टर ने कहा कि 2,500 पाउंड की जरूरत पड़ेगी। अगर हर महीने 2,500 पाउंड की जरूरत पड़ेगी अगर हमें कलीसिया को चलानी। 2,500 पाउंड यानी 3 लाख रुपए हर महीने। तब पास्टर नाना को पता चला कि इस व्यक्ति के मन में खोट है, वो सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हैं। और तभी वो पास्टर शेरिडन से कह रहे थे अगर वो व्यक्ति सही रीति से उनके दिल में सच्चाई थी और सही रीति से वो सेवकाई करना चाहते थे तो आज वो इंग्लैंड में प्रचार करते होते। लेकिन आज हमारे साथ पास्टर शेरिडन है और उनके जगह पे पास्टर शेरिडन आए क्योंकि वो व्यक्ति के दिल में खोट है। तो बहुत बार जब हम छोटी छोटी समझौते या करते हमारी सेवकाई में थोड़ी थोड़ी लालचों के लिए हम बड़े मौकों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उन्हें खो देते हैं। Okay, now number 3, talking about desire. What was Elisha's desire? It's very simple, right? When Elijah asked him, what do you want? He said, I want a double portion of your spirit. Just imagine. So he didn't take a moment to think. If somebody asks you, so what do you want? What will be your answer? तो तीसरी चीज जो है कि एलिशा की इच्छा क्या थी। जब किसी ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसने कहा कि दुगना अभिषेक जो एलिया के ऊपर है वो मुझे चाहिए। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, आपकी मन की भावना क्या है, तो आप क्या कहोगे उनसे? Elisha was very clear. He had this desire in his heart because he's with his master, Elijah. He has seen the way God has used Elijah. He's seen the passion. He's seen God's power. And he's been watching. He's been watching. And there is this desire that's growing within him that I want that. I want more than that. I want God to use me more than my master, Elijah. And I don't know if he anticipated a moment like that when Elijah looked up to him and asked, okay, tell me, what do you want? And immediately came the answer. I want a double portion of your spirit. That's desire. That's God kind of desire. और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे अंदर बहुत सारी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है। जब हम एलीशा को देखते हैं, जब वो एलिया के साथ था तब एलिया ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरे प्रभु मुझे आपकी दुगने अभिषेक की जरूरत है। लेकिन बहुत बार हम ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी इच्छा थी कि परमेश्वर, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, मुझे एक दुगना अभिषेक दे दो ताकि इस सेवा को कर दो। ये एक महान एक इच्छा है। The ones God has used who have gone before us, men of God, men of faith, people whose lives have challenged, their godliness must attract us. Their passion must attract us. We cannot be passive. We cannot be passive in Christian ministry. Okay, so what is that? What is that attracts you, about God? What is your desire? What is your burning passion, desire in your heart? What is that one spiritual desire? Because we spoke about Gehazi's desire. A small desire, ungodly desire conquered him. Let's talk about the right kind of desire. Now, as servants of God, tell me, what is that drives your passion? What is your burning desire?
तो गेहाजी के जीवन में से हमने उसकी दिल की भावना, दिल की इच्छा को देखा। वो एक सही इच्छा नहीं थी, वो लालच के पीछे पड़ा था और उसने उस बड़े मौके को खो दिया। लेकिन हम सही इच्छा जो परमेश्वर की ओर से आती है, परमेश्वर के भाव से आती है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके अंदर वो क्या इच्छा है जो आपको परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है, या सेवकाई करने के लिए क्या आकर्षित करता है। गेहाजी को वो चांदी आकर्षित कर रही थी, लेकिन आपको वो क्या चीज है जो आपके दिल में है, जो आपको आकर्षित करती है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। So now seeing Elisha every day. Elisha is a man who carried a double portion of the anointing of Elijah. Now being with him every day, seeing Elisha every day, shouldn't Gehazi have had a desire for that same anointing, if not more? But I think there was no such thing in Gehazi's life. एलाइशा को जब वो रोज देख रहा था, उसके साथ ही बना रहता था, उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए थी, क्योंकि एलिशा एक ऐसा व्यक्ति था, उसके पास दुगना अभिषेक था, एलाइजा से भी दुगना अभिषेक था। उसको देखते हो उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए थी कि मुझे भी उस तरह का अभिषेक चाहिए, शायद उससे ज्यादा अभिषेक चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही इच्छा थी, परमेश्वर के अनुसार इच्छा नहीं थी। I want to ask you a question, an honest question, right? It's like, what do you desire God to do for you as a servant of God? What do you think? What is your desire? What do you desire God to do for you? Just think about it. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से इसका जवाब दे सकती हो कि आपके अंदर क्या इच्छा है कि परमेश्वर आपके लिए करे। जो आप इच्छा करोगे परमेश्वर आपके लिए करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आपके अंदर क्या इच्छा है कि परमेश्वर आपके लिए वो करे। If you have an answer to that, then I think you have a clear vision about your life and ministry. अगर इसका जवाब आपके पास है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आपका लक्ष्य सही जा रहा है। If not, then you have to desire more of God in your life. अगर नहीं, इसका जवाब नहीं है आपके पास, तो आपको और परमेश्वर को आपके जीवन में अपनाना है, परमेश्वर की ओर आपकी इच्छा और होनी चाहिए। You know, my guess about Gehazi, my assumption, and I think it's right. I think Gehazi would have had that passion once, but he lost it. और जब मैं सोचता हूँ गेहासी के बारे में, तो मेरा अंदाजा ये है कि जब उसकी शुरुआत हुई रहेगी गेहाजी की, तो उसके अंदर वो एक एक इच्छा उसके अंदर परमेश्वर की ओर होगी, लेकिन उसने उस इच्छा को खो दिया। Because Elisha wouldn't have selected a successor in Gehazi if he didn't have that passion. I think it was there, that fire was there, but it lost its flame. So probably we have to also sometimes think, do we really have that fire, that passion constantly growing in us? Is it consuming us? Are we driven by one great desire? What do you think you want from God? मेरे अंदर मुझे लगता है कि गेहाजी के अंदर वो जोश, वो आग शुरुआत में थी। नहीं तो एलिशा ऐसे ही किसी को नहीं चुनता था अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे दिन आगे गए उसकी इच्छा परमेश्वर से दूर चली गई, उसका आकर्षण लालच की ओर चला गया, और उसका जो जोश वो चला गया, उसका जो आग उसके अंदर था परमेश्वर के लिए, वो पूरी तरह से कम होते गया। So a lot of things today attract the people, right? Anything that is new attracts people, new style, new fashion, new phone, new looks, new TV serial. A lot of things attract people. So we should ask our church members, do things of God attract you? What is about God that attracts you? When you hear the word of God, when you read your Bible, when you see or you hear about God's men, what are the things that really attract, how God attracts you? और हमें अपने आप से सवाल पूछना है, क्या है वो चीजें जो हमें, क्या है
वो चीजें जो हमें आकर्षित करती है। संसार में बहुत सारी चीजें जो आकर्षित करती है, लेकिन परमेश्वर की ओर क्या है वो चीजें जो हमें आकर्षित करती है? हमें सिर्फ अपने आप से नहीं, हमारे कलीसिया के विश्वासियों से भी ये पूछना है कि क्या है वो चीज जो तुम्हें आकर्षित करती है? या वो संसारिक चीजें है या वो परमेश्वर की ओर है? आपकी इच्छा संसार की ओर है या परमेश्वर की ओर है? वो क्या है? वो सवाल हमें पूछना है, अपने आप को जांचना है और हमारे विश्वासियों को भी ये समझाना है। If you ask me what is the desire in my heart right now, I can tell you it's a revival. And I know there is a cost that is involved if we need to see revival in the lives of people. और अगर आप मुझसे पूछोगे, यानी पास्टर शेरिडन से पूछोगे कि उनके जीवन की आकर्षण या इच्छा क्या है, उनके जीवन की एक ही इच्छा है, वो है जागृति होना। और इस जागृति के पीछे भी एक मूल्य को हमें देना है। That's what is attracting my heart now. और यही चीज है जो उनके हृदय को आकर्षित कर रही है, जागृति, रिवाइवल। Okay, number 4. चौथी चीज, Number 4. Let's read verse chapter 5, verse 26. और दूसरे राजाओं का 5वां अध्याय 26वां वचन हम पढ़ेंगे। 26वां वचन 26, यहां पे लिखा है, 26वें वचन है, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बेरिया, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? Here Elisha is saying, is this the time to take money or to accept clothes, olive groves, vineyards, flocks? Is this the time? यहाँ पे एलिशा उससे पूछ रहा है गेहाजी से, क्या यह समय है चांदी, वस्त्र, जैतून, गाय बैल, ये सारी चीजों को पाने का? क्या यही समय है? See, as God's servants, we operate on divine schedule. We discern God's timing. और परमेश्वर के दास होने के नाते हम परमेश्वर के समय के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार हम चीजों को पाते हैं और उसके अनुसार ही चलते हैं। There is a time for everything in God's scheme of things. और परमेश्वर के स्कीम के अनुसार हर चीजों के लिए एक समय होता है। It's not wrong. I think it's not wrong to have money or clothes or olive groves. All those are all blessings. God will give us, but there is a time for everything. So, as God's servants, we need to discern the timing in which we are living and what is God demanding us in the season that we are going through. ये गलत नहीं है कि हमें पास पैसे हो या घर हो या कपड़े हो, ये सारी चीजें गलत नहीं है, लेकिन हमें समझना है किस समय में परमेश्वर हमें वो चीजें देना चाहता है। परमेश्वर के नियुक्त Okay. So, as I said, we should be men who would understand and discern the times in which we are living and what is God expecting out of you as a servant of God in the ministry that He has given you. हमें उस तरह के पुरुष बनना है कि हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें इस समय के लिए क्या नियुक्त किया है, हम किस समय में जी रहे हैं और अभी की जरूरत क्या है, उसके अनुसार हमें चलना है। So, men of Issachar, the Bible says, they knew the times, they could discern the times and knew what Israel must do. और बाइबल ये कहती है, इज़का के लोग थे, वो जानते थे कि समय क्या था और उस समय के अनुसार क्या नियुक्ति किया है और इस्राएल को क्या करना है, वो जानते थे। So even as God's servants, we should discern God's timing in our lives. We should discern what God is expecting out of me. So even as an organization,
I've been in ministry for the last 21 years. Only now, we've been talking about global missions. God is using us, to expand. So God is only doing now, after all these years, only now. So even for our national vision, we have Project Next. God is saying that next 6 priority states, right? We are going to move. So how is God positioning us now, even in the ministries that God has given you? You've been serving in your mission field for so many years. What is the fruit of it? How are we able to see a breakthrough? What is God saying concerning your mission field, concerning the people? All these things as a servant of God, you should be able to discern and understand. और जैसे हम भी सेवकाई कर रहे हैं और हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमें समझना है कि ये समय परमेश्वर ने हमारे लिए किस लिए चुना है, क्या नियुक्ति इसने इस समय में किया है, उसको समझना है, उसको जांचना है और परख के साथ उसके अनुसार चलना है। पास्टर शेरिडन कहते हैं कि वो 21 साल सेवकाई में हैं और अभी उनको समझ में आ रहा है कि हमें अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल मिशन तक पहुंचना है। और हमने प्रोजेक्ट नेक्स्ट की बात की, हम 6 और राज्यों में जाने वाले हैं। तो हमें ये जानना है कि परमेश्वर इस समय हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार इन चीजों को समझना है और उसके ओर आकर्षित होकर उसके अनुसार चलना है। Okay, so I have another question then. और एक सवाल है आपके लिए। Since God wants us to discern timing and He wants us to know, what is God speaking to you at this time concerning your life, concerning your ministry? What is God speaking to you? और एक सवाल ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जांचें और परखें कि परमेश्वर की इच्छा इस समय के लिए नियुक्त हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया। और अगर ये परमेश्वर ने आपसे बात की है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि परमेश्वर इस समय आप सब लोगों से क्या बात कर रहे हैं, आपकी सेवकाई से, आपके जीवन से वो क्या चाहते हैं, उन्होंने आपको क्या बोला है। In this season of time and ministry, it's another 5 months, 6 months, 5 months, 2025 is over. Right? You are in the second phase of 2025. What is God speaking to you? What are you going to do for the next 5 months? What is your focus? What is God driving you towards? You're just going to be passive and just see, just to keep doing the same thing over and over again, or do we have a clear vision? Are we discerning God's move in our life, God's heartbeat for our ministry? What is God speaking to you? तो परमेश्वर आपको इस समय क्या बात कर रहे हैं। 2025 जो साल था, हम साल के ऑलमोस्ट अंत में आए हैं, कुछ चंद महीने बाकी है इस साल के लिए। और क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या नियुक्त किया है, परमेश्वर की इच्छा क्या है इस साल के लिए। साल तो समाप्त होने आया है, या तो हम ऐसे सोच रहे हैं हम जितने लोग हमारे पास है उतने हम खुश है, उसी के साथ हम सेवकाई करेंगे, जितना है उसी में चलेंगे, कि क्या परमेश्वर ने आपसे बात की, आपका दर्शन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या आपके अंदर कुछ है जो आप करना चाहते हो। Bible says the anointing that you have received will teach you all things. So if you have an anointing in your life, it's operating in your life, then you will begin to see all of this. You will be driven by that vision. बाइबल ये कहती है जो अभिषेक आपके ऊपर है, उस अभिषेक के द्वारा आप उन सारी चीजों को पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। तो उस अभिषेक के अनुसार आपको चलना है। Okay, so last point, another 5 minutes, I'm closing. Okay, the last point, I think we have covered 4 points. So number one is value your calling. That's what I said. Value your calling, your anointing. Number two, I said conquer your desires. If not, your desires might conquer you, however small it is. Okay. Number three is grow in your attraction for God, or probably you can say desire God more. That's number three. Number four is discern the times in which you are doing ministry. Discern, understand the times. And the last point, okay, let's read verse 27. Let's read verse 27. 27वां वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं का 5वां अध्याय 27वां वचन।
इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। Okay, was God too harsh on on Gehazi? Was he too harsh? क्या परमेश्वर ने जब गेहाजी को एक दंड दिया, कुछ ज्यादा दंड नहीं था? The leprosy that has left Laman will cling to you and your descendants to come. Was it too harsh? क्या परमेश्वर ने जब उसे दंड दिया, ये ज्यादा कठोर या सख्त नहीं था गेहाजी के लिए? जो कोढ़ नामान से निकल आया है वो तेरे और तेरे परिवार के ऊपर आएगा, ये कोढ़, ऐसे कहा। Why such a severe pronouncement of judgment on a man who had probably a momentary lapse of, desire? और हम देखते हैं इतनी सख्त सजा क्यों एक व्यक्ति के लिए, जो उसने एक छोटी सी गलती की, उस समय में उसने एक छोटी सी गलती की, तो ऐसी सख्त सजा इस व्यक्ति के लिए क्यों? Why a curse? एक श्राप क्यों उसके ऊपर डाला गया, क्यों? I think the answer is ministry demands utmost devotion and absolute faithfulness. और इसका जवाब ये है कि सेवकाई मांग करती है कि हमारा जो आकर्षण हो परमेश्वर की ओर हो, और पूरी तरह से भरोसामंद होना और विश्वास योग्यता में चलना। Serving God, it's such a sacred ministry calling. It demands undivided loyalty, total faithfulness to God. और हम देखते हैं कि सेवकाई करना एक बहुत बड़ा कार्य है, और ये चाहता है, और ये जब हम सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी पूर्ण भक्ति परमेश्वर की ओर हो, और पूरी निष्ठा, विश्वास योग्यता परमेश्वर की ओर हो। It is a fearful thing to fall into the hands of God. God is not going to take it lightly, as servants of God, if we don't really give utmost care, to our calling and to the ministry that God has entrusted. एक बहुत डरावनी चीज है अगर हम परमेश्वर के हाथों में गिरेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सेवकाई को पूरे संभाल के चले, और सेवकाई के अनुसार हम चले, पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ चले। और परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है जब हम इस चीजों के साथ नहीं चलते। So even in Jeremiah, there's a verse that says, "No, he who serves God in slackness, he who does the work of the Lord in slackness will be cursed." Even if you're doing God's work, with slackness, with a casual attitude, Bible says you will incur curse. और यिर्मयाह में भी एक वचन है, वो व्यक्ति जो सेवा कर परमेश्वर की सेवा करता है आलस के साथ या ढीलेपन के साथ, यानी ढीलेपन के साथ आराम से करता है, उसको कोई चिंता ही नहीं, तो वो श्रापित कर दिया जाए। Gehazi, your leprosy will cling to your descendants forever. Eli's descendants were cursed. God said, all your descendants. In some of the Levites, you read in the Old Testament, were cursed by God because they did not hold on to the Levitical covenant. So it's either you and your generations will be blessed because you faithfully served God, or you and your generation will incur curse. So that's where there's no middle ground, right? So when God blesses us for our faithfulness, you and your descendants to come will be blessed. और यहाँ पे हम देखते हैं गेहाजी के ऊपर जो श्राप आया वो सिर्फ उसी के ऊपर नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कोढ़ की बीमारी को उनके ऊपर आएगी। और हम देखते हैं कि उसके और उसके परिवार, उसके पीढ़ियों के ऊपर ये बीमारी आती गई, और इलाई के परिवार के ऊपर, उनके पीढ़ियों के ऊपर भी श्राप आया। और बहुत सारे लेवी गोत्र के लोग या लीवाइट्स जो थे, उनके ऊपर भी श्राप आए, क्योंकि उन्होंने अपना काम परमेश्वर के अनुसार नहीं किया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप आशीष हो, और वो आशीष सिर्फ आपको नहीं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप आलसीपन या ढीलेपन के साथ इस सेवकाई को करोगे, तो श्राप आपके ऊपर ही नहीं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के ऊपर आएगा। Do you know what happened to Gehazi? अब जानते हो कि गेहाजी के साथ क्या हुआ? If you read in chapter 8, verse 4,
the king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, "Tell me about all the great things Elisha had done." And just as Gehazi was telling the king how Elisha has restored the dead to life, you see, he somehow found his way to the king's presence and talking all the stories of Elijah which he saw, all the stories of Elisha, still talking. But he's a man who is lost his anointing, his calling, his purpose in life. But he's somehow surviving, he's somehow there doing something. और दूसरे राजाओं के 8वें अध्याय 4थे वचन में, 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 4 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किया है उनका मुझसे वर्णन कर। यानी हम देखते हैं कि एलिशा राजा के महल में है और वहां पे शायद उसे कुछ काम मिला है और वो एलिशा के बारे में, एलिशा के अभिषेक के बारे में वो कह रहा है, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने ये किया, उसने एक स्त्री के बेटे को जिलाया, उसने भूमि की दोहाई देने, इन चीजों की दोहाई देने लगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। लेकिन हम देखते हैं उसने अपने अभिषेक को खो दिया, उसने परमेश्वर की सेवकाई को खो दी। वो कुछ छोटा मोटा काम शायद उसे प्राप्त हुआ रहेगा इस राजा के महल में, और एलिशा की दोहाई कर रहा है, एलिशा की वाहवाही कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी चीज जो उसके साथ एक बड़ी घटना हुई, उसने अपने अभिषेक को खो दिया और परमेश्वर की सेवकाई को पूरी तरह से खो दिया। Have you seen some servants of God talk big? They'll talk big, so many things. It appears to be very impressive, but God is not there. God would have departed a long time back. So, for a servant of God, for all of us, the greatest virtue is our faithfulness to God. और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेवक होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं, लेकिन ये गेहाजी की तरह वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अभिषेक को खो दिया होता है, उन्होंने अपनी बुलावट को खो दिया होता है। लेकिन एक सेवक के लिए सबसे प्रमुख चीज और सबसे महान चीज वो होती है कि वो कितना विश्वास योग्य है परमेश्वर की, उसकी भक्ति परमेश्वर की ओर कितनी है, उसकी निष्ठा परमेश्वर की ओर कितनी है, वो बहुत जरूरी है। So point number 5, just closing. So if you're faithful to God, then you leave a blessed legacy, a godly legacy behind you. It's so important. God is serious about your ministry, and you're also called to be serious about your ministry. Value your calling, value your anointing, value your ministry. And whether you value it or not, God is valuing it. God is saying how you are going to respond, how you're going to serve Him, how you're going to, minister to Him. So when we are faithful to God, that's the most important thing. You're faithful to what God has given you. I'm sure, we leave blessings not only for us, for our generations to come. तो पांचवी पॉइंट ये है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के अनुसार करते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनकर करते हैं, तो हम सिर्फ आशीष हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी तक उस आशीष को पाते हैं। तो हमें हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए और हमें उस सेवकाई को, जो हमें बुलावट दी है, अभिषेक दिया है, उसका मूल्य समझना है, उसके कदर को जानना है, उसके जो मूल्य है समझना है। परमेश्वर उस मूल्य को समझता है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसे वो समझता है, लेकिन क्या हम उसे समझते हैं, अपने अभिषेक के मूल्य को समझते हैं, अपनी बुलावट को समझ पा रहे हैं? All right. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Okay. Somebody can pray and close. Okay, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस बहुमूल्य वचन के लिए। हमने सीखा एक सेवक के जीवन से, एक अच्छा सबक आज सीखा कि हमें हमारी जो इच्छा होनी चाहिए वो आपकी ओर होनी चाहिए, हमारी जो निष्ठा, हमारी जो विश्वास योग्यता होनी चाहिए वो आपकी ओर होनी चाहिए, ना कि संसार में। हमें अपने अभिषेक को की रक्षा करना, हमारे अभिषेक को संभालना,
हमारी बुलावट को समझना है, इसके मूल्य को समझना है। आप समझते हो, और आपने हमें साधारण रूप से चुना नहीं, आपने हमें एक बहुत बड़े कार्य को चुना है, के लिए चुना है। और हम साधारण व्यक्ति नहीं, हम आपके बच्चे, हम आपके दास है, हम आपके सेवक है। हमें हमें गेहाजी की तरह नहीं बनना। हमें छोटी छोटी लालसाओं के कारण, छोटी छोटी समझौते के कारण हमें हमारी बुलावट से गिरना नहीं। उसके कारण उसने सब कुछ खो दिया, हमें खोना नहीं। हम हमारे ऊपर और हमारे परिवार पीढ़ी के ऊपर श्राप नहीं चाहते, हम आशीषों को चाहते हैं। हमारा आकर्षण आपकी ओर हो प्रभु, हमारी इच्छाएं आपकी ओर हो प्रभु। हम इस बुलावट की मूल्य को समझे, हमारे अभिषेक के मूल्य को समझे, और इस अभिषेक के कारण, आपके अनुग्रह के कारण, आपके आत्मा के कारण हम आगे बढ़कर सेवकाई को आगे बढ़ा सके, और आपकी इच्छा को कर पाए, और आपके नाम की महिमा हमारे सेवकाई में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन के द्वारा हो। हम पूरे हार्वेस्टर्स आउटरीच इंडिया के संस्था के सारे पास्टरों को, उनके परिवारों को, उनके विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपते हो। उनकी इच्छा आपकी ओर है, उनका आकर्षण आपकी ओर है, उनकी भक्ति आपकी ओर है, उनकी विश्वास योग्यता आपकी ओर है, उनकी निष्ठा आपकी ओर हो प्रभु, और वो आशीषों को पाए और आपके नाम की महिमा कर पाए। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम में करते हैं, आमीन।